on the day of both the semifinals, and I think this is the first time ever in World Cup history that we've got two semifinals on the same day. It took us a while to understand and digest the fact that there are two semifinals and also adapt like they are adapting to the conditions. Because for us to when to do the podcast, at what time to do the podcast, has been a bit of uh a sort of problem. But yeah, we are here to another episode of the Uncapped Indians, guys. The first semifinal is over in Afghanistan, and unfortunately has been shown the way back home. Either they are going to Dubai or they are going to Kabul. But yes, I mean something that they can be proud of. Honestly, क्योंकि इतनी दूर आना और फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, अंकित, अचीवमेंट तो है. यार अचीवमेंट तो है यार। ठीक है, वो सेमीफाइनल में पहुंचे पहली बार। ठीक है, लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है उनका। प्रॉब्ली उनको वो एक्सपीरियंस नहीं था, सेमीफाइनल का वो प्रेशर प्रॉब्ली नहीं हैंडल कर पाए। वो पिच ऐसी रिएक्ट कर पाई कि उन्होंने इतना रन स्कोर नहीं बना पाए। एडन मार्करन ने खुद बोला था कि भाई हम फॉर्चुनेट इतना है, अगर अगर हम भी बैटिंग लिए होते। फॉर्चुनेट हम इसलिए हैं क्योंकि वो टॉस टॉस जीतते हैं और बैटिंग ले लेते हैं। अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग लेता, एंड सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स। तो वही है, ठीक है यार, चलता है, होता है। आई एम हैप्पी फॉर अफगानिस्तान एंड हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका। आफ्टर सो लॉन्ग दे आर दे आर रीच्ड ऑलरेडी इन फाइनल्स। पर धोनिल, एनी थॉट्स ऑन मार्करम एंड हिज कैप्टेंसी? लास्ट टाइम हमने देखा था कि मतलब किस तरीके से उन्होंने स्पिन से बैम्बूजिल किया एक वेस्ट इंडीज जैसी बैटिंग लाइनअप को. और इस बार उन्होंने पिच अच्छे से रीड करी, कंडीशंस अच्छे से रीड करी, एंड ही यूटिलाइजेस फास्टर बॉलर्स रियली वेल, अंडरस्टैंडिंग द विकेट, एंड लूजिंग द टॉस वाज आल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. Yeah, as Ankit said that Markram was fortunate enough to lose a toss. आपके पास 3-6 फीट के बंदे हैं जो एक ऐसे विकेट पे आते हैं जहाँ पे वेरिएबल बाउंस है. आई डिड नॉट फाइंड एनी वेरिएबल बाउंस. आई फाउंड देयर टू बी अ लॉट ऑफ बाउंस, a lot of swing, especially all the fast bowlers were getting, especially when a left-hander like a Marco Jansen gets the ball in, you could clearly see that Afghanistan was not ready back like this. And not Afghanistan. If there was any other team, the way they were swinging the ball, the way it was carrying to the keeper, and the way it was bouncing around Kagiso Rabada's two deliveries, where he got both of them bowled, was so lethal that there was no feet movement from the Afghani batters, nor could they get their bat on time. So, Yeah. I mean, if it was a wicket where it's a little slow, power over में आपने चार कुछ बनाए, then eventually it starts getting really slow. But this was not a place to be. Nokia was charging it at 145-50. It was too much for Pakistan to take. This is South Africa. Alan Donald, Dale Steyn. Just glimpses of these fast bowlers and knocking Afghanistan out again. A little bit of, yes, conditions were not in favor, but Afghanistan also needs to realize that they need to have a concept. They need to have a strong middle order who can take the game, develop a skills deliveries, which is very, very difficult. But top teams in the world, even India, even in fact India at one point in time was not able to face deliveries outside home conditions which are really quick. But then we made our domestic tournament so strong, manner that they're green, that helped our batters understand wickets when they go abroad. So Afghanistan needs to start understanding that. I understand they play in Dubai most of the time, where the pitches are not as fast or quick or swinging as these. But if Australia agrees to play, or if they ask Afghanistan to play, probably more exposure will make them understand how to play these games. Hard luck, Afghanistan. It's just that the conditions were too overwhelming for your liking. पर कंडीशंस की तूने बात करी, आई थिंक कंडीशंस वर रियली गुड, रियली वेल एक्सप्लॉइटेड बाय द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स. मुझे ऐसा लगा व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम, तेरे को लगा कि बाउंस ज्यादा है उसमें डेफिनेटली, मतलब क्योंकि दो तीन जगह ऐसा था कि मतलब ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक ने भी मिस किया, हमने देखा कि मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी मतलब ऊपर से गई उसके, और फिर एक 22 भी गया. What I'm trying to say is that obviously इसमें वेरिएबल बाउंस मेरे को लगता है, एंड बेग टू डिफर, उसमें थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस था. इवन व्हेन रशीद केम इनटू द अटैक, तुमने देखा कि मतलब एक आध बॉल लो कीप करी. इनफैक्ट इवन विथ नॉर्किया स्पेस, ठीक है, आप एक्चुअली देखो कि मतलब वो किस तरीके से उसने आउट किया रशीद खान को. वो बॉल थोड़ी सी और ऊपर आनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा हटा, बॉल थोड़ी सी और ऊपर चाहिए थी, पर वो नीचे से चली गई उसके बैट के. सो आई थिंक वेरिएबल बाउंस काफी था इसमें.
But what I think South Africa did really well is that they bowled right टेस्ट मैच लेंथ. उन्होंने पूरी मतलब आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, थोड़ी सी घुमाई अंदर से बाहर. एंड आई थिंक यही चीज रबाडा ने भी करी. रबाडा ऐसी ऐसी सिचुएशंस को ना बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लॉइट करता है. बहुत लोग अभी मार्को यानसन बोल रहे होंगे. डेफिनेटली मार्को यानसन ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया. मतलब ही एंगल्ड इट रियली वेल इनटू द राइट हैंडर्स. और उन्होंने पहले ही ओवर में कमर तोड़ दी जब उन्होंने वो पार्टनरशिप ब्रेक करी रहमुल्लाह गुरबाज की. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब एंगल किया उसको एंड व्हेन दे वर प्लानिंग टू टेक इट टू द स्टंप एरिया, वहां पे मतलब यू कुड सी कि मतलब वो थोड़ा सा अफगानी बैटर्स थोड़े अनसर्टन हो रहे थे बिकॉज ऑफ द बाउंस. क्योंकि अगर बाउंस वेरिएबल नहीं होती ना तो फिर मतलब प्रॉब्लम ये हो जाता कि या तो वो नीचे खेलते या तो वो ऊपर. अभी इसमें मतलब वो बिल्कुल ही दे वर कंफ्यूज कि वो नीचे खेलना है कि ऊपर खेलना है इसको. क्योंकि दोनों में ना क्या होता है, या तो आपके इनसाइड एज लग जाता है या तो टॉप एज लग के फिर उसके बाद कीपर के पास चले जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मिडल द बॉल रेडी वेल एंड स्पेशली. और ऐसी कंडीशंस बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी एंड साउथ अफ्रीका इज टू गुड अ टीम टू एक्चुअली मिस आउट. मैं शबरेज तमजी की बात करूंगा. शबरेज तमजी ने जब इनफैक्ट जब बॉलिंग करनी शुरू करी ना, इनफैक्ट उसने क्या कहते हैं 3 विकेट अपने दूसरे ओवर में ही खत्म कर दिए थे. तो उसने भी बहुत ही मतलब मिडिल स्टंप वाली लाइन, जो बिल्कुल स्टंप वाली लाइन, उसने मिडिल से फिर उसके बाद लेग पे घुमाया. उसके जो 2 LBW थे वो दोनों के दोनों अंपायर्स कॉल थे अगर तू देखेगा. तो उसने बिल्कुल मिडिल से घुमाया. और मार्को यानसन ने भी बिल्कुल मिडिल से घुमाया. और समन लाइक अ नोकिया एंड रबाडा वो ऑफ स्टंप की लाइन डाल के फिर अंदर एंगल इन किया. मेरे को नो आई एग्री विद इट. आई मीन टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद, बट मेरे को पता क्यों ऐसा. देयर वाज ट्रस्ट इन द बाउंस. न्यूयॉर्क जैसा नहीं था. देयर वाज अ लिटिल बिट ट्रस्ट इन द बाउंस इज बिकॉज़ व्हेन मार्को यानसन वाज कमिंग टू बोल अ लेग स्लिप, you want to call it a leg slip, you want to call it a short fine leg, there was a plan of bouncing the batsman out. Because if you bowl it on the legs, it either goes for 4. But if you bounce it really well, he's trying to clip it towards somewhere and probably get caught a leg slip. That didn't happen. He obviously then double bluffed by bowling something that's a fuller one and get Gurbaz with an edge. And in fact, if there was true bounce because Gurbaz was also not charging. अगर वो थोड़ा सा भी बाउंस नीचे रहता ना तो शायद वो चार्ज करने की कोशिश करता. बट yeah, so that's why I feel that the South Africans trusted the wicket a little bit more. यार एक सिंपल सा लॉजिक है. उन्होंने क्या किया पता है, स्टंप टू स्टंप रखा. जैसे उसने क्रिकेट लाइन रखी, उसमें दो ही चीज होती है, इधर यू विल हिट और यू विल मिस हिट. व्हेन यू हिट इट विल बी अ 4 or 6. इफ अ बॉलर हिट्स इट विल बी अ विकेट. दैट्स द रीजन यू हैव सीन मोर ऑफ द बोल्ड्स. कल बोल्ड इतने इसलिए दिख रहे थे कि आप मारने जा रहे थे. हाँ, कि आप मारने जा रहे थे, आपका लग ही नहीं रहा था शॉट और आप बोल्ड हो जा रहे थे. तो वो टेस्ट लाइन ही. तो और यार मेरे को भी लगा ऐसा यार, क्योंकि जब ये बॉलिंग करने आया ना अफगानिस्तान, उनकी बॉल नीचे रुक रही थी. वो पता है लास्ट में बैट लगाता है जब राशिद खान ओवर फेंक रहा होता है, लास्ट में एकदम बैट लगाता है वो रीजा हेंड्रिक्स ने. हाँ, रीजा हेंड्रिक्स ने एकदम लास्ट में एकदम नीचे खेला, जिसपे वो बॉल थ्रो करता है, स्टंपिंग करने की रन आउट करने की कोशिश करता है, बट यस इनसाइड द क्रीज. तो मेरे को भी लगा था यार ऐसा. नोकिया क्यों स्लेज कर रहा था राशिद खान को? क्यों स्लेज कर रहा था राशिद खान को? विकेट गिर गई यार, क्या हो गया उसको एकदम से? फिर नोकिया तो अच्छा. In general, people have said about him that he's a very smiling personality, very easygoing. Why was he sledging? स्लेजिंग नहीं था, वो जोन में आ गए थे यार. दे न्यू गेम है. वही अगर 130 रन बना होता ना, आनी पड़ जाए साउथ अफ्रीका को. और माकरम का डिसीजन भी रिव्यू ऑन एयर बोलता है, व्हाट यू फील अबाउट दिस? तो बोलता है, आई थिंक राशिद खान हैज बेटर इयर्स देन एवरीवन इन अफगानिस्तान. तो वहां माकरम का विकेट मिल सकता था. सही बोला तूने. बट यार देखा जाए ना मैच, डीकॉक दूसरी बार ऐसे ही आउट हुआ. पता है डीकॉक का ये है, समटाइम द बाउंस एंड द बॉल स्विंग्स बैक टू हिम. दिस इज इट. ये और हमने बात पर द विकेट, ज्यादा विकेट, बट नहीं फजल फारूकी नहीं, वो इनसाइड दे दिया. या ठीक है यार. सो साउथ अफ्रीका नाउ अ थ्रेट इन द फाइनल्स यार. मतलब ये एक टीम है जो अब जिससे सबको डरना चाहिए. साउथ अफ्रीका जब विकेट्स ले रहा था ना,
तो जितने भी उसके सीनियर टीम मेंबर्स हैं जो इससे पहले खेल चुके हैं सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और हैव बीन इन वर्ल्ड कप्स, दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग दैट मच। दे वर लाइक ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रिस्टन स्टब्स, वो पहला है, सबसे यंगेस्ट टीम मेंबर है, वो पागल हो गया था भाई। वो कूद रहा है, उछल रहा है, फुल एक्सटेसी है, वो जीत जाएंगे हम यार। बाकी सबको कहीं ना कहीं एक था कि यार ओके, हम इससे पहले सेमीफाइनल में नहीं जीते थे, तो हम फाइनल में पहुंच गए हैं। अब हमारे पास वो एक मौका है जहां पे हम वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। And Yeah. with the kind of bowling performance that they have put in right now, in a wicket like Barbados, that offers bounce, okay, especially in the start of an innings. And if I think it's a day game because they're assuming India to be a part of the final. So yeah. And I think it's great for Shamshi to come back in form and picking up those 3 wickets after being thrashed a few matches ago. Keshav Maharaj only bowled one. The batsmen are already in form, and all eyes on the trophy. All eyes on the trophy. All eyes on the trophy. But yes, Afghanistan would definitely can be proud of themselves, for having put in such a performance. And of course, South Africa after the 2015. After the 2015 World Cup, where they won their first and the only knockout game in an ICC event. And of course, उन्होंने ICC एक knockout वो भी जीती थी। ICC की एक इवेंट था नॉकआउट 99 में। 1988 में। उसके बाद मतलब कभी वर्ल्ड कप में सच उनके साथ हमेशा नॉकआउट्स में धोखा ही हुआ है। बट ग्लैड दैट दे हैव एटलीस्ट रीच्ड दैट मार्क एंड रीच्ड द फाइनल। स्पीकिंग महाक्रम ने जिताया है, महाक्रम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया है, बस FYI ओनली। अंडर 19 नहीं, मैं सीनियर टीम की बात। अच्छा। बच्चे गलती कर जाते हैं ना कभी कभी। 2008। Anyway, Anyway, so there are two more teams, in fact, that are yet to clash in the semi-final tonight, and that is one of the reasons why we are bleeding blue today. But more on that, of course. अंकित, पहला रिएक्शन क्या लगता है, मतलब क्या होने वाला है आज रात को 8 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? बारिश होने वाला है, बारिश होने वाला है। अब जो भाई प्रिडिक्शन है मैं सच बोल लूंगा, अब इसमें क्या, थोड़ी ना उसको बटर लगा के नहीं आज इंडिया ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। बारिश होगा, मैच नहीं होगा, इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। अगर ठीक है, अगर 10 ओवर का मैच होता भी है देन इट्स अ यार लक गेम। देन इट विल बी अ लक गेम, किसी का भी मैच है। फिर आप कितना भी उसमें वो बोल लो कि ये अच्छा खेल गया वो अच्छा खेल गया, 10 ओवर का मैच नहीं यार। मैं नहीं मानता हूँ 10 ओवर का मैच। T10 लीग ये सब नहीं मानता मैं, ये सब बिलीव नहीं करता मैं ज्यादा। बट यस, इट विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। अगर मैच होता है मजा आएगा देखने में। अगेन इट विल बी अ वेरी लो स्कोरिंग गेम एट गोवाना फॉर श्योर। जितने भी अभी वहां पे मैचेस हुए हैं ना, तो उसका एक स्टैट आया है कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा 6.4 से बना है रन रेट से। मिडिल ओवर में वो ड्रॉप होता है, जाता है 5.5 में। डेथ में पीक पकड़ता है which goes to 7.6, and they get only 50% of the boundaries. You have to convert your single and doubles. You have to play. So yeah, it will be a low scoring game if a match happens. That's a very small brief about the Goanna pitch or Goanna Stadium. डोनल, फर्स्ट रिएक्शन? बारिश आएगा। मैं कल से वेदर रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे बारिश नहीं है, 8 बजे बारिश नहीं है, 9 बजे थोड़ी सी बारिश है, 10 बजे थंडर स्टॉर्म है। 75 to 80% precipitation के चांसेस हैं। मतलब it is obviously going to rain. If the match gets cut off, we have about 250 minutes of extra time just in case, because you don't have a reserve day. So that's one that ICC has done. अगर 250 मिनट मिलेगा तो सबको 10-10, 12-12 ओवर मिलेंगे। और अगर 10-10, 12 ओवर मिल रहे हैं तो इंडिया शायद अपना एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेगा। रोहित शर्मा is not worried much about the rains. He said, I'm more worried about the match getting delayed because then we have a charter flight to catch and we will not be able to catch that flight. So उसको ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है, पर उसने बोला है कि वो तो आईसीसी और वेस्ट इंडीज को देखना है, हमें क्या। So that's one part of it. Second, what I'm worried about is Josh Butler. Josh Butler has historically, and by historically I mean in the last few
years has done well against India, especially in the World Cup. Butler and Salt have a partnership that at least carries them to the first 7 overs for sure. वो लोग Yeah. पहला 6-7 ओवर खेलते ही हैं. If you look at Butler's dismissal against Australia, he was trying to reverse sweep Zampa, gets caught at point. Against West Indies, he gets LBW of Roston Chase. Against South Africa, he scored at deep mid-wicket trying to slog Keshav Maharaj. The only time Butler has been dismissed by a fast ball in the last 4 matches is by Trumpelman, where he Yeah. gets in a 12-over match in this thing. He tries to get the ball inside, hits his pad and gets bowled. That means if Butler and Salt open, my bet is that Arshdeep Singh would want to take Butler's wicket, because in case if he does survive post those power play and he gets a hang of it, then it gets very difficult to stop Butler. We saw in the USA match कैसे नेत्रवालकर और उन सबको like demolish कर दिया था. Butler also plays a lot of IPL, has played a lot of IPL, has faced Indian bowlers before, understands the nitty-gritty of it, and yeah, I mean, you could play Yuzvendra Chahal, but to only get one man out, you can't risk it. So there are a few things. Harry Brooks is something I'm really concerned about. Moeen Ali has a great matchup against Virat Kohli, doesn't let him score a lot. Yeah. Reece Stokely has a good matchup against Rohit Sharma. Then you will have the likes of Adil Rashid, which we haven't really played in the IPL or much apart from England tours. So that's a sort of unknown territory for us. And Phil Salt is obviously, you know what he's capable of doing. So there are a lot of things that India will have to plan. Rohit Sharma has said in the press conferences that conditions, and he says, I know I keep repeating it, but that's how strategies are made. And yeah, I really want to know what does India come up with to tackle that English lineup that looks really commendable, really commendable. So, yeah. I think England will go with the same lineup. वो Mark Wood को I don't feel like Mark Wood will get a chance. The reason behind Chris will definitely be inside because he has already experienced in 2022 India's batting lineup. एक दो ही player change हुए हैं यार. I have a question for this. अगर गोयाना में स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है, तो आपके पास 3 स्पिनर है, अक्षर, जडेजा, कुलदीप यादव. ओके, इंग्लैंड के पास टेक्निकली 2 स्पिनर है, आदिल रशीद, मोइन अली, and Livingstone can bowl a few leg spins here and there. Do you feel that maybe England would want to unleash Tom Hartley? No, I'll tell you, no. That's the reason, Livingston is bowling all 4 over quotas. अगर आप लास्ट के 2 मैचेस देखो ना, एक में 3 ओवर डाले हैं, उसने 3.2 और 3.4 ओवर्स, और लास्ट जो मैच हुआ यूएसए के अगेंस्ट, उसने भी वहां पे अपना कोटा पूरा किया है. दिस इज द रीजन जॉस बटलर उसको ओवर देना शुरू किया है. Looking for the future prospect for this India purpose. So using Livingstone is something that yeah. Because फिर उनका बैटिंग का थोड़ा सा इशू हो जाएगा because सैम करन को उतना गेम टाइम नहीं मिला है थ्रू बैट. पर सैम करन तो अच्छा किया. सैम करन अच्छा भी कर देगा यार. मतलब उसमें टॉम हार्टली का तो कहीं चांस आस पास भी नहीं बनता. मेरे को तो लगता है. No, I'm asking if England is looking at a specialist spinner, especially a left-hander. They have an Adil Rashid, they have Moeen Ali, they'll have तो ये भी तो देखना है यार, विल जैक्स जैसा बंदा नहीं खेल रहा है यार. उन लोगों ने विल जैक्स को नहीं खिला रहे हैं इसलिए क्योंकि विल जैक्स जैसा बंदा ही नहीं खेल रहा है यार. मतलब आप ये भी तो देखो, that's the kind of depth that they want in their batting and as well as bowling. When अभी तो इतने सारे मैचअप्स की बात कर रहा है, जॉस बटलर वहां पे जाके मतलब ये बोल देता है कि नहीं यार मैं मैचअप्स नहीं, अब मैं गट से जाता हूँ. Because eventually what happens is that you have to have a good balance between both as well as data. Of course, रोहित शर्मा जब उतरता है ना, रोहित शर्मा ये कहता है कि हाँ चलो ठीक है. And this is something that Dinesh Karthik said, even about Rohit Sharma. Rohit Sharma prepares a lot, right? He goes before a game with a lot of data in mind, with a lot of data sets, and फिर वो शुरुआत में प्लान A प्लान B करता है. उसके बाद नहीं जब होता है ना, तो फिर उसके बाद वो गट से जाता है, फिर वो इंस्टिंक्ट से जाता है, फिर वो देखता है कि बॉल किस तरफ घूम रही है, बैट्समैन का फील्ड मूवमेंट क्या है, वो किस तरीके मारने की कोशिश कर रहा है, कौन से बॉलर को टारगेट कर रहा है, ऑल ऑफ दैट. एंड देन इट बिकम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट डेटा, योर इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर. व्हाट हैपेंस व्हेन यूजुअली यू स्पेंड, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से दैट यू आर सेट. ठीक है, जब आदमी कहता है ना मेरा सेट है, इसका मतलब आपकी इंस्टिंक्ट टेक ओवर कर जाती है. ऑल यू आर डूइंग इज जस्ट वाचिंग द बॉल. When you say that you are set as a batsman, it means that you're watching really well coming out of the hand. It is as simple as that. You're reading the bowler, you're reading the play.
And if you're able to read the play, if you're able to read the game, that is when you're successful as a batsman, because you're 2 steps ahead of the bowler and you are asking the bowler to do stuff that you want him to do. You want to bowl. As simple as that. Hmm. So at a particular ठीक है, मतलब all this data, all this matchups, ठीक है, वो सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए रहता है. उसके बाद it is all instinctive. It is all instinctive. आजकल instinct का डेटा होगा. That is the problem. ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी किस तरीके से कहाँ सोचता है नहीं पता. हमने कहा कि मतलब गेम टाइम नहीं है, किस तरीके से एक आदमी को सोचना है. अगर मान लो कि से फॉर एग्जांपल समवन लाइक सैम करन विल हैव अ लॉट मोर डेटा. हैरी ब्रूक का शायद उतना हमारे पास डेटा नहीं होगा, क्योंकि सैम करन काफी लंबा खेल रहा है. पर इसका क्या मतलब, हमारे पास जितना हैरी ब्रूक का डेटा है वो क्या कम है? ऑफ कोर्स उनका डेटा सेट्स है, एंड प्लेयर्स इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यार. Correct. Players evolve over a period of time. They are put in different situations, and different match situations bring out different characters. Hmm. So, So I'll tell you something. Okay, wait. No, I agree with the fact that Rohit Sharma has instincts or he prepares a lot. There is a small story. Okay, India under 17 का कैंप चल रहा था मुंबई में. ठीक है, players from all across India, all boys came, and 40-45 boys came, and only 15 were then be shortlisted for this. It had the likes of Cheteshwar Pujara, I think the Anirudh Shrikant, etc. Ravi Ashwin was going there, and they were practicing. और वो 4-5 जन ना एक पर्टिकुलर प्लेयर का इंतजार कर रहे थे कि उसके बारे में हमने बहुत सुना है. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेयर वाज रोहित शर्मा. रवि अश्विन सो करेक्टली रिमेंबर्स रोहित शर्मा दैट ही इवन न्यू कि उसके पास एक ग्रीन कलर का एसजी का बैट है जिसपे एसजी का स्टिकर लगा हुआ है, और ये लड़का लोकल ट्रेन में, क्राउडेड ट्रेन में किट लेके आता है. He had so much information at that point in time about a particular player. This ghost, and even Virat Kohli said, right, भाई ये रोहित शर्मा के बारे में सब बोल रहे हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रहे? So there are times when you are about 14, 15, 16, 17, whatever, you create that aura around you because of the kind of talent that you have. Okay. In fact, Ravichandra Ashwin got selected in that 15. He played a first match against Nepal and then was dropped to let in Rohit Sharma, who eventually played those 4 matches. Yeah. Okay. So you might gain a lot of instincts after experience, but a few things are just very natural to you. And that's what I feel about Rohit Sharma. The way he hits the ball, his ability to time the ball, his ability to read the game. It's been there since that age group that he started playing. Yeah. So you might develop instincts, but if you're Rohit Sharma, probably you're just born to play cricket. That's what I'm saying. If you're born to play cricket, then obviously your instincts take over after a while. So you, no matter कितना तुम डेटा पढ़ लो, वो काम नहीं आता भाई. मतलब एक टाइम बाद ना, that's why a lot of, और यही चीज मैंने पिछले I think पिछले पॉडकास्ट में बोली थी about Shane Warne. Shane Warne said that you've got to have a very good balance between your instinct, ठीक है, your imagination, and then a particular data set that you have about a particular player. So unless you have that, it's not. And I really rate Shane Warne very, very highly. Stephen Fleming, people like Ganguly, all these people have different thoughts about leadership, because they've all been very, very successful in their own methods, and there's no one right method, right, to win a cricket. And पर तूने नेचुरल की बात करी, नेचर के ऑफ कोर्स हमने बात किया, बारिश हो सकती है. सो काफी लोग जो मतलब ये पब्स में जर्सी वर्सी पहन के जाएंगे और सेलिब्रेट करने जाएंगे, मतलब कि हम इंडिया जीतेगी, तो हो सकता है कि Sorry, since we're talking about instinct, I have one more instinct. Sorry, I just need to bring this up. ठीक है, तूने डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात की. ठीक है, गांगुली ऐसा है, शेन वॉर्न ऐसा है, ये ऐसा है. ठीक है, तो राहुल द्रविड़, ठीक है, एक बार जाता है और वो जाके बोलता है कि यार मेरी पर्सनैलिटी ना थोड़ी सी लाइक आई कांट प्ले फ्रीली लाइक एन ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्टिंग और समथिंग, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ दिस थिंग. सो आई वांट टू सी how is Ricky Ponting as a person and how does he bat, and I want to sort of learn from him. So he goes, he speaks to Ricky Ponting. Okay, after a while he comes back, he says I cannot be Ricky Ponting because that guy is something else. He's known as punter because he plays blackjack really well. Now Rahul Dravid said I can't play blackjack. I'm not the kind of person who's played blackjack. Rahul Dravid has played a lot of matches at Chinnaswamy Bangalore on wickets like that. Ricky Ponting probably plays for Tasmania, so on wickets like that. Yeah. So you might have instinct, but your instincts also depend on what kind of experiences have you carried from age group cricket, to under what kind of captains you played in, or how they have made the decisions and turned your career, and then what your own experience comes into play.
So yes, instinct is important, but it also depends on where that instinct is stemming from. आपको पता कहां से चल रहा है कि मुझे ये करना है, समझ रहे हो? वहां पे थोड़ा सा डेटा यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है यार ये सही है, बट अगर आप डेटा को देखो तो लगता है ओ यहाँ पे ये गलती हो रही। सो everyone doesn't have that instinct. That's what I'm trying to say. Everyone doesn't have a gut feel. I mean, everyone has it, but it's not always right. इंस्टिंक्ट सबका होता है, गट फील सबका होता है. इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज राइट. Everyone has it, but I don't feel it's always right if you have a gut feel. Like I have a gut feel, so it's right. It is never going to be right. You might just find yourself, in a more right position than the other. There is nothing called as a perfect decision, right? Correct. कोई भी चीज Correct. Yeah. It is as यार एक करेक्ट एग्जांपल ले ले, जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, गट फीलिंग से ही गया था ना. क्या बोलते हैं ये, बटलर, और हार गया. नहीं, गट फीलिंग से ही गया था. इफ ही वुड हैव गॉन थ्रू डेटा तो ऐसा गलती नहीं करता. ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया में भी उसने गट फील से उसको बॉल दिया था जहां पे डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू कांट ऑलवेज गो बाय गट फील. यू नीड टू हैव डेटा बैक. I mean, cricket is a game of instincts. I completely agree. But now it's evolved. Now it's like you need to take an informed decision. You can't just say, "Oh, my heart says this." But coming back to England's bowling, पहले हम बोल रहे थे कि सैम करन को चांस नहीं है, सैम करन की जगह कहाँ है. But बटलर ने उसके लिए जगह बनाई, and then सैम करन, the kind of he has changed the bowling lineup or strengthened the bowling lineup of England. It's unbelievable. वो बंदे ने चेंज कर दिया है यार भाई. बताओ, वो नहीं रन लीक नहीं कर रहा है. सो यार, रीस टोपली, सैम करन, फॉलोड बाय. ये हम इतना सब बात कर रहे हैं ना, मेरे को सबसे ज्यादा याद अभी न्यूजीलैंड का है. और मेरे को न्यूजीलैंड पता है इसलिए इस बार इतना अच्छा क्यों लग रहा था, और मैं चाहता था कि वो आए, क्योंकि उन लोग का जर्सी ना बहुत क्लासिक था. पता है, उनका जर्सी 90s का था. तो मेरे को बस इतना बुरा लग रहा है कि वो लोग इतना अच्छा जर्सी बनाया, बच्चे लोग को बोला कि तुम लोग बात करो टीम के बारे में, और वही नहीं है. डोंट नो, आई जस्ट रिमेंबर दैट. और कहाँ है तुम्हारा जर्सी कहाँ है तुम्हारा अंकित? पहनने वाले हो क्या भाई? यहाँ पे देख, मैं तेरे को बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, देन आई विल कम टू द जर्सी. आई मीन द कंट्री व्हिच आई एम, वेयर सब लोग बोल रहे हैं इंडिया में मैच देखो, मैच देखो. यहाँ पे यूरो कप चल रहा है भाई. सो इंग्लैंड इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड कप. ट्रस्ट मी, I have been there so many places. I have meeting so many people. They are interested more in football. कोई व्यूअरशिप नहीं है यहाँ पे क्रिकेट का. वो एक टाइम आता है when it comes to the Ashes. वो एक टाइम आता है जब ये वनडे खेलते हैं, और जब वो मैच लॉर्ड्स और आपका किया ओवल में होता है, तभी भीड़ आपको इकट्ठी मिलेगी, और सबसे राउडी क्राउड मिलेगा आपको एज वेस्टर्न में. बस ये 3 जगह आप पकड़ के चलो. So but coming to the jersey, यार इंडिया ने भी अच्छा जर्सी बनाया जो तुम लोग ने पहना है यार इस बार. It's very nice. क्या सीन है भाई कृष्णा, जर्सी का क्या सीन है? सही है भाई, मतलब अभी सब खरीद लो मेरे हिसाब से. तो फैन कोड में मिल रहा है, पर यार पता है जर्सी का ना ऐसा हमेशा से ऐसा नहीं था. मतलब जो स्पोर्ट्स अपैरल की मार्केट थी ना इंडिया में, वो हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी. 2005 में इनफैक्ट नाइकी ने शुरुआत करी थी इस चीज के बारे में, और नाइकी ने कोशिश करी थी कि हम स्पोर्ट्स अपैरल की मार्केट को बढ़ाएंगे. और उनका एक यही स्ट्रैटेजी था कि यार हमें इंडियन मार्केट में अगर एंटर करना है ना, तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि मतलब इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर लो. ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 साल के लिए फॉर ऑलमोस्ट $43 मिलियन. मतलब उस टाइम के लिए दैट वाज अराउंड 197 करोड़. ठीक है, और 2006 में ना उन्होंने फुटबॉल टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर. उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर दोनों चीजें अगर हम नेशनल टीम से कर सकते हैं तो नथिंग बेटर देन. तो उन्होंने 2 तरीके की जर्सी निकाली. एक तो नॉर्मल आपकी जो फैन जर्सी होती, और एक है जो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका. पर दोनों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी. आपकी जो नॉर्मल फैन जर्सी थी वो कुछ 2200 रुपए की थी, और जो एग्जैक्ट रेप्लिका थी वो थी 3500 रुपए. ठीक है, और उन्होंने मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी लॉसेज झेले, क्योंकि ये सब बिक नहीं रही थी. प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने ना ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करी थी कि इंडियन कंज्यूमर्स को देखो बिल्कुल ही पैसा वसूल प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, और मतलब बहुत ही कम एक्सपेंसिव चाहिए. तो जितने भी मतलब लोग जा रहे थे स्टेडियम्स, वो लोग बाहर से मतलब 200-300 रुपए का मतलब जर्सी खरीद के निकल जाते थे. तो इन लोगों ने काफी रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया, जहां पे इन लोगों ने स्टोर्स वगैरह खोले. पर 2015 और इसके बाद उन लोगों ने 2 बार कॉन्ट्रैक्ट भी अपना रिन्यू किया, 2011 में और 2016 में. और दोनों टाइम अगर आप एक्चुअली नोटिस करो तो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था.
तो उनको लग रहा था कि काफी सारी जर्सीज आपकी जो है बिक जाएंगी, तो 5-5 साल के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था, इस टाइम तक उनको लॉसेस ही हो रहे थे। 2015 तक उनको ऑलमोस्ट लॉस हो गया था 100 करोड़ का, और 2017 तक वो 170 करोड़ चला गया था लॉस। एंड ये सारा इंडियन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उसके अलावा उनका 35% स्टोर्स इनफैक्ट बंद हो गए थे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टैक्सेस और ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। साथ साथ ये भी होता है कि मतलब आपकी ना टीम को मैनेज करने के ना कहीं सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो हम्म बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे नाइकी को। तो प्यूमा ने इस गेम को बहुत अच्छे से खेला। उन्होंने कहा कि यार हम ना अपने आप को एज अ फैशन ब्रांड इंट्रोड्यूस करेंगे rather देन स्पोर्ट्स अपैरल ब्रांड, क्योंकि स्पोर्ट्स अपैरल की उतनी मार्केट नहीं थी यहाँ पे। और जब बाकी लोग सोच रहे थे कि यार हम ई कॉमर्स एंटर करें ना करें, सो प्यूमा वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू डू इट। और उन लोगों ने क्या किया कि मतलब ऑफ कोर्स कुछ आईपीएल टीम्स को साइन किया, पर मोर देन द टीम्स दे वर मोर इंटरेस्टेड इन साइनिंग प्लेयर्स। और उनकी सबसे बड़ी डील ऑफ कोर्स विराट कोहली फॉर 110 करोड़। ठीक है, उन लोगों ने युवराज सिंह को साइन किया, सौरव गांगुली को साइन किया एक टाइम पे, और अंपायर्स के लिए भी ना अलग अलग जूते बना के, और मतलब जिस तरीके से वो अपने आप को मार्केट कर सकते थे बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने। और अगर आप एक्चुअली देखो कि एक टीम को स्पॉन्सर करनी है, अगर इंडियन टीम को आपको स्पॉन्सर करना है तो उसके क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले साल का आपको 50 से 70 करोड़ रुपए जो है खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आपकी जो है 5 साल की डील साइन होती है, तो मान लो 300 करोड़ रुपए या 350 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, 20 से 30 करोड़ आपको मार्केटिंग में लगेगा, और फिर उसके बाद प्लेयर्स और स्टाफ के लिए आपको किट्स देनी पड़ेंगी, और वो हर 3 गेम में बदलता रहेगा। उसके बाद प्लेयर्स की, हर एक प्लेयर की ना डिमांड होती है कस्टमाइज की, मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। जैसे विराट कोहली की अपनी डिमांड हो सकती है, रोहित शर्मा की अपनी डिमांड हो सकती है, सूर्य कुमार यादव की अपनी डिमांड हो सकती है। कोल्ड कंट्रीज में अगर कोई जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से जैकेट स्वेटर्स वगैरह देने पड़ेंगे। सारा का सारा लॉजिस्टिक्स इनको खुद मैनेज करना पड़ेगा, बीसीसीआई इनकी हेल्प नहीं करता। एंड इसके लिए इनको अलग से एक टीम भी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली आपका एक मैन पावर कॉस्ट भी जाता है। या और ये पूरा का पूरा ना मतलब बहुत कम फीजिबल था उस टाइम पे नाइकी में, क्योंकि नाइकी सबसे पहले एंटर किया था। उससे पहले तो अपने पास सहारा और विल्स जैसे मतलब नॉर्मल जो इंडियन कंपनीज थी जो लोकली मैन्युफैक्चर करती थी, वो सब क्या कहते हैं कंपनीज थी। सो एडिडा जब इस गेम में आया ना, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से इस चीज को समझा, उन्होंने नाइकी वाली गलती नहीं करी। और एडिडास ने वर्ल्ड कप के टाइम पे ना एक फैन जर्सी निकाली जस्ट फॉर 999। उन्होंने कहा कि यार ये एक तरीका है जिससे हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा बिकी भाई वर्ल्ड कप के टाइम, बहुत ज्यादा। और उन लोगों ने ना क्या किया कि अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, जिससे कि ये सस्ता पड़ गया लोगों को, और क्या कहते हैं दोबारा खरीदा। पर ये जो मार्केट है ना स्पोर्ट्स अपैरल की, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो ग्लोबली ये इसका 33.5 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गई है। और इंडिया में 2022 तक ये ऑलमोस्ट 674 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। और 2029 तक एट ए सीएजीआर ऑफ 16.2 ये 1.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। तो अगर वाह आप फैन कोड की जर्सी, फैन कोड शॉप की मतलब साइट खोल के देख लो, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बिकॉज दे आर दी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मर्चेंडाइज पार्टनर्स। और वहां पे आपको टी शर्ट्स, पोस्टर्स, मग्स, चेन्स, पेन स्टैंड्स, नोटबुक्स, मास्क और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, ऑल वेरी चीप एंड अफोर्डेबल, स्टार्टिंग एट 599। एंड इंडिया में ना ऑलमोस्ट 50% मार्केट जो है स्पोर्ट्स अपैरल का वो Tier 1 से आता है, और 30% सेल्स आपकी जो है Tier 2 से आती है, और बाकी बाकी जगहों से आती है। एंड हाईएस्ट बीइंग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, और Tier 2 में आपको गाजियाबाद और हावड़ा। और सिर्फ फैन कोड अगर आप देखो तो वहां पे आपको 120 प्रोडक्ट्स हैं विद अबाउट 650 SKUs। तो आप सोचो कि वाह मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं इस चीज को। तो है भाई, एक जरूरी है मतलब जर्सी वर्सी पहन के जाओ और देखो मतलब क्लब्स में अपने दोस्तों दोस्तों के साथ, बस बारिश ना आ जाए, ये देखो। पर रनों की बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रनों की बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि यार गोयाना में, ठीक है, लो स्कोरिंग अफेयर हो सकता है। और लो स्कोरिंग अफेयर से मुझे ये चीज पता चली यार कि इंडिया ना जिस तरीके से एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने ना एक छोटा सा डेटा कोलेट किया है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हाउ इंडिया परफॉर्म्ड इन द 2022 वर्ल्ड कप and हम्म what is performing in the 2024 World Cup. Now, this is only based on batting. Okay. Now, consider that 2022 World Cup was on good batting wickets with good pace and bounce. This करेक्ट World Cup
is more on slow wickets, favoring the bowler. ठीक है. So actually अगर देखा जाए ना तो इंडिया का पावर प्ले परफॉर्मेंस जो रहा है is at 36 runs, 36.1 in the 2022 वर्ल्ड कप. यहाँ पे एवरेज है at 47 runs. पिछले वर्ल्ड कप में, ठीक है, उनका जो हाईएस्ट स्कोर था इन पावर प्ले वाज 46 अगेंस्ट जिम्बाब्वे. इस Yeah. वर्ल्ड कप में इट इज 60 in the last match against Australia and the lowest being Correct. 40 against USA. ठीक है. इन्होंने 100 रीच करने के लिए कितना टाइम लिया है? ठीक है. सो 2022 वर्ल्ड कप में the highest that they took was 15 minutes. This was against Pakistan and also against England in the semi-final. So the average is 13.8. ठीक है. एंड अगर आप इसमें देखो इस वाले वर्ल्ड कप में the highest is 17.2 overs that was taken against USA and the lowest was 8.4 overs that was taken against Australia. ऑस्ट्रेलिया. अगर आप देखो तो 13.1 ओवर्स में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं. करेक्ट. अब नंबर ऑफ, अब मैं जितनी भी स्ट्राइक रेट बताता हूं आपको कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका था. अगर आप देखो तो पिछले वर्ल्ड कप में इट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय सूर्य कुमार यादव, वेयर सूर्य कुमार यादव फॉर 4 कंसेक्यूटिव मैचेस उसका स्ट्राइक रेट था 204, 170, 187, 244. ठीक है. एंड व्हेन आई एम टेकिंग द स्ट्राइक रेट इनटू अकाउंट, आई एम टेकिंग देम एटलीस्ट हैविंग प्लेड अ मिनिमम ऑफ 15 बॉल्स एंड हैविंग अ गुड इंपैक्ट ऑन द गेम. एंड इस वर्ल्ड कप में it has been divided amongst Rohit, Rishabh, Surya, Hardik, with Rohit twice, Surya twice, Rishabh once and Hardik once. ठीक है. And the highest from Rohit Sharma at 224. So number of balls इन लोगों ने जितना अटैक किया है, ठीक है, has been secondly after England, क्योंकि इंग्लैंड ने 70.2% के बॉल्स अपने अटैक किए हैं एंड इंडिया ने 66.2. और यही 2022 के वर्ल्ड कप में was at 59.8. रोहित शर्मा, I just say रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट इस टाइम पावर प्ले में 147, जबकि इट वाज स्कैटरिंग समवेयर अराउंड 96 और 98 इन द लास्ट वर्ल्ड कप. सो दैट्स द गेम हैज चेंज्ड फॉर देम. इतना ज्यादा मतलब इन लोगों ने अपना बैटिंग अप्रोच चेंज किया है. सो होपफुली if we bat first on this wicket, which should be the case, क्योंकि अभी क्या है कि मतलब डे गेम है, obviously पावर प्ले इंपॉर्टेंट है, QTK ने भी बोला, और उसके अलावा मतलब they'll definitely try and look for runs, and I am sure that with batting stats till 8 we are going to go full Monty when it comes to कोई मारे चाहे या रन. और अभी तक मैंने एक बंदे का नाम लिया ही नहीं है जिसके रन आने बाकी हैं इस वर्ल्ड कप में. कौन है वो आदमी अंकित? विराट कोहली की बात कर रहा है तू? अच्छा, मुझे लगा कुलदीप यादव. कुलदीप यादव बैटिंग करा लो तुम. यार देख, धोनी ने भी बात बोली है, पता है कि इस बार का हमारा अप्रोच अलग है. लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से हम ये सुन रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा और जो भी ओपनिंग करने आ रहा था ना, वो एग्रेसिव खेल रहे थे. बट जैसे वर्ल्ड कप आया वो हमने तुरंत देखा भाई वो कुछ अलग ही है. बट दिस टाइम ये लोग ने बोला नहीं, ये करके दिखाया है. लास्ट टाइम ये सिर्फ बोल रहे थे कि आवर अप्रोच विल बी वेरी हाई, बट दिस टाइम वी कैन सी. मैं बता, ये चीज ना इन लोगों ने पिछले वर्ल्ड कप में, आई थिंक पिछले T20 वर्ल्ड कप जब ये लोग इंग्लैंड से आ रहे थे ना, उसके बाद ही हमें पता चल गया था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये लोग अपना बैटिंग अप्रोच चेंज करेंगे. बट इट्स अबाउट कि यार हम बात क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मतलब इट इज अबाउट वॉकिंग द टॉक ऑल्सो. ठीक है. एंड रोहित शर्मा वाज एबल टू डू दैट इन 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर वन. ही वाज एबल until the final where we were like कि नहीं, अब थोड़ा अब थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलते हैं, which was also during the middle overs. Otherwise रोहित शर्मा तो मार ही रहा. ठीक है. हाँ, तो बस वॉकिंग द टॉक, क्योंकि 10 रन आ गए थे, उसके बाद भी उसने रुका नहीं था, एंड हेंस क्योंकि उसने वो रिस्क लिया तो वो कैच हो गया. बट अदरवाइज अगर आप देखो कि इस वाले वर्ल्ड कप में अभी तक वो रुके नहीं. नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी दैट कम द नॉकआउट, क्योंकि पिछले वाला मैच भी ऑलमोस्ट एक तरीके से नॉकआउट हो सकता था. ठीक है. बट नाउ come to the actual knockout stage, ठीक है, and that too against an attack like England. It'll be very interesting to know whether they go with the same approach or not. Great. Yeah, that's it. I don't have anything else. बारिश होगी, फाइनल पहुंचेंगे हम. Yeah, and yeah, thank you very much, guys. It's been Thank you very a much. great podcast.
I would have loved to continue, but Dwanil has a lot of other engagements, and he would like to leave before he gets set for the semi-final tonight at 8. We'll see you tomorrow then. Otherwise, you all know as to where all we are, and yeah, hopefully we are still smiling after the game tonight. And it's as wide as mine right now. We are on X, we are on Facebook, we are on Instagram, and we are on YouTube. Thank you so much, guys. It was lovely.